Afternoon, friends. Today's topic, as you all know, is about our healthcare. So I welcome Dr. Aditika Agarwal for interacting with us on this subject. Before I pass on the baton to Aditika, I just want to introduce her. So the first thing is she holds a PhD in foods and nutrition and IMRC SRF securing all India top 12 rank. She is associated with the University of Delhi as assistant professor and a clinical nutrition expert for an international research working group. So now next to Adita, you can speak on. Carry on. Thank you so much, Paji. I'm firstly going to, can I not share the screen here? You want to share the screen? Okay, so yes, I will allow. I've made one PPT, so. You can just send request, I will allow. I'm not able to send the request. Aditika? Yes, I'm not able to send आप, the request. आप जो dotted line है उसमें आप जाइए. Okay, what I'll do, I'll just... There's no dotted line. There's only one option, share screen coming here. Okay, so share screen. But it is saying that the host has disabled the participant screen sharing. So it is not allowing me to share the screen. Doesn't matter, I'll go with this. Hello everyone, I'm Dr. Aditika Agarwal. I have, am I audible to everyone present? Yes, yes. Okay. I'm associated with the Delhi University, as Auntie has already mentioned. And I have a special interest in counseling of all the population groups, including this particular group of women, which is comprising of elderly women, postmenopausal women, and pregnant lactating women, and also the school-going and teenagers group. So today's times are pandemic times, and we are facing with a very great challenge amongst us during these corona pandemic times. So the topic of my talk today would be building immunity in the COVID-19 times. So how do we build immunity? To understand this, first I will explain to you what is immunity. Can anyone like to answer what immunity is? Should she, excuse me please, should she speak in Hindi or she should carry on in English? I think mix करके बोलना पड़ेगा. I will mix करके. And I think everybody is muted, so nobody can answer. Okay. Okay. So immunity, we mean by immunity is the body's resistance to fight reaction to the infections. So हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारी इम्यूनिटी कहलाती है. अब इम्यूनिटी हमारी दो प्रकार की होती है. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वन इज द इनेट इम्यूनिटी, जो कि हम ऐसे भी समझ सकते हैं विच इज जो कि जन्मजात होती है हमारी. हम कुछ इम्यूनिटी हम लेके पैदा होते हैं अपनी मदर्स के थ्रू, और ये हमें प्रोटेक्शन देती है. इट एक्ट्स एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिंग अस इन द डेंजरस और क्रिटिकल एनवायरनमेंट्स. सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज द एडेप्टिव इम्यूनिटी. एडेप्टिव इम्यूनिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये वो इम्यूनिटी है जो कि हमें वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के थ्रू हमें मिलती है, और it can be also gained by someone or somewhere else.
तो हमें कभी किसी और के थ्रू भी मिली होती है, वो भी इसमें एडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाता है। अब कमिंग टू, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी आज, कुछ स्टेप वाइज गाइड बताऊंगी जिसके थ्रू यू कैन बिल्ड योर इम्यूनिटी इन दीज क्रिटिकल पीरियड्स। ऐसे कुछ स्टेप्स बताएंगे जिसके थ्रू आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में बढ़ सकती है। पहले बात करेंगे हम, बहुत ज्यादा सबने सुना है विटामिन सी। विटामिन सी और इम्यूनिटी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारा बहुत हमें हेल्प करता है, किसमें? हमें डिजीज फाइटिंग में हेल्प करता है, यानी बीमारियों से लड़ने की जो हमें क्षमता देता है वो है विटामिन सी। और कभी भी आप गलत नहीं हो सकते विटामिन सी में अगर आप नेचुरल सोर्सेज के थ्रू विटामिन सी ले रहे हैं। इफ इट इज कमिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज देन विटामिन सी इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। अब विटामिन सी के सोर्सेज क्या होंगे? जैसे आंवला, रिचेस्ट सोर्स है आंवला। आंवला 100 ग्राम आंवला हमें देता है 252 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। दूसरा हो गया सोर्स गुआवा। गुआवा हमें देता है 214 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है जो कि है बेल पेपर्स या शिमला मिर्च जिसको हम समझते हैं। 1.5 कप या 100 ग्राम ऑफ शिमला मिर्च जो है हमें कितना देगी? 61 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी हमें शिमला मिर्च से मिलेगा। नेक्स्ट है सोर्स लेमन, लेमन जूस, क्योंकि लेमन को हम बहुत ज्यादा सब लोग समझते हैं कि नहीं, विटामिन सी की जहां पे बात आए तो पहले लेमन आता है, पर आपने देखा होगा कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैंने सबसे पहले आंवला किया, फिर गुआवा किया और फिर मैंने बेल पेपर्स बताई। क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि लेमन का जो है विटामिन सी कंटेंट कितना है? खाली 41। इट इज हैविंग ओनली 48 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी, जो कि विटामिन सी आप देख सकते हो कि दूसरे सोर्सेज की तुलना में थोड़ा कम है, बट देन ऑल्सो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट थंब रूल है, दूसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है वो हमें क्या देखेंगे कि हमें वी हैव टू स्टे क्लोज टू आवर आइडियल बॉडी वेट। इसका मतलब ये है कि हमें आइडियल अपने जो बॉडी वेट है उसके नजदीक ही रहना है। जो लोग ओबीस होते हैं, दोज पीपल हु आर ओबीस या ओवरवेट, उन लोगों में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी एंटीबॉडीज जो है उसकी बनने की क्षमता जो है ओवरवेट होने के साथ साथ कम होती जाती है। और इसलिए आप देखोगे कि ये लॉकडाउन के टाइम में हमें बहुत ज्यादा हमारी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं और वी ऑल हैव somehow or the other gain weight. So this is the time to shed those extra kilos. यही वो टाइम है जब एक्स्ट्रा जो वेट हमें गेन किया है वो हमें रिड्यूस करना है for improving the production of antibodies in the body. नेक्स्ट थिंग है जो कि सबके लिए बहुत आसान है, इस ग्रुप के लिए स्पेशली, सिटिंग इन द सन। अब आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि यू ऑल आर एंगेज्ड विद गार्डनिंग एंड हम यही बोलते हैं कि विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए यू नीड टू गो आउट ऑफ योर हाउस, यू नीड टू स्टे आउटडोर्स, और उसके लिए जो टाइम इंपॉर्टेंट है वो है 11 to 3। 11 to 3 PM का जो टाइम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, और विटामिन डी क्या करेगा हमारे शरीर में? वो इन्फ्लेमेशन का रोकथाम करेगा। तो इसीलिए जरूरी है हम हर दिन बाहर निकलें और प्रोडक्शन हो सके किसका? विटामिन डी का। अगर हम गार्डनिंग करते हैं या हम कोई बुक रीड कर रहे हैं बाहर बैठ के, तो उससे भी हमें विटामिन डी मिलेगा। हम धूप में बाहर बैठ सकते हैं, पर हमें कितना? कम से कम आधा घंटा बैठना है, और किस टाइम बैठना है? 11 से 3 के बीच में। कई बार होता है कि हम एट अ स्ट्रेच वी कैन नॉट सिट इन द सन, तो कोई बात नहीं, हम उसमें क्या करेंगे? विल ब्रेक डाउन द टाइम। तो हम ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे? 10 से 12 मिनट हम एक बार में बैठ लेंगे, और बाकी का जो 10 या 12 मिनट है वो हम बाद में बैठ लेंगे। तो इस तरह से हम इंटरवल्स में बैठ के वी विल मीट आवर विटामिन डी रिक्वायरमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेट गो नहीं कर सकते, बिकॉज विटामिन डी फॉर्मेशन इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है तो आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए एंड यू शुड देन गो फॉर अ सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी, टू अवॉइड शुगर। शुगर को क्यों मैंने मना किया? क्योंकि शुगर जो है वो बहुत ही डिसेबलिंग है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के लिए कह सकते हैं क्षति पहुंचाने वाली काम करेगी। बहुत एक्सेस शुगर नहीं लेनी है हमें, और ये क्या करती है, जब शुगर इनटेक होगा तो वो क्या करेगा? दैट विल हेल्प इन द
अटैकिंग ऑफ द वायरस। तो इस सिचुएशन में ये होगा कि वायरस का जो अटैक है वो वी विल बी मोर प्रोन इफ वी आर हैविंग अ एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर्स। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टे हाइड्रेटेड, यानी अपना जल स्तर, जो जल का हमारा इंटेक है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा रखना है। कितना? 2 से 3 लीटर पानी हमें रोज पीना है। और हमें ये भी, इस पे भी निर्भर करता है कि आजकल जैसे गर्मी है तो स्वेट हमारा ज्यादा है, तो हमें उस पे भी डिपेंड करता है हमारा हमारा वाटर इनटेक। तो हमें अपना वाटर लेवल कम से कम 2 या 3 लीटर रखना है। कैसे रखेंगे? हम बटर मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, टर्मरिक वाटर या हल्दी का पानी, ग्रीन टी, ये सारे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अपना फ्लूइड इनटेक या तरल पदार्थों का सेवन हम अपना प्रॉपर रख सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा कि हमारा हाइड्रेशन लेवल, जो हमारा जल स्तर है शरीर में, वो सही रहेगा। अगर 1% भी डिहाइड्रेशन हमें होता है, इवन इफ we are facing with 1% of dehydration, then what are the symptoms? They are fatigue, they are constipation, and they are headache. तो headache, constipation और ये fatigue, जो थकावट की जो समस्या है, ये उत्पन्न हो जाती है अगर शरीर में जल का जो लेवल है, जो स्तर है, वो कम हो जाता है। और हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कोई कैफीन वाले ड्रिंक्स इस समय नहीं लेंगे। इनटेक में, वाटर इनटेक में मैंने कोई भी आपको कैफीन होते हैं जिनमें, जैसे टी या कॉफी जिनमें कैफीन है, वो हमें ड्रिंक्स नहीं लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोर ऑफ क्वर्सेटिन रिच फूड्स। अब क्वर्सेटिन क्या है? क्वर्सेटिन एक प्लांट पिगमेंट है, फ्लेवोनॉइड्स, ये वो सोर्सेज हैं जिसमें प्लांट पिगमेंट फ्लेवोनॉइड्स बहुत रिच अमाउंट्स में होते हैं। अब इसके एग्जांपल हैं हमारे ग्रीन टी, अनियंस, कोको, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन हो गया, स्प्राउट्स, ब्रोकली, टोमेटो, एप्पल पील्स। तो इन सब में जो है क्वर्सेटिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और क्वर्सेटिन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वर्सेटिन हेल्प करता है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में, तो वो हमें हेल्प करेगा इन द बिल्डिंग अप ऑफ एंटीबॉडीज एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द प्लेटलेट्स। एक बार इसको रिपीट कर दीजिए, आपने क्या क्या बताया लेने के लिए? मैं अभी सबको लिस्ट डाउन करके आई रिपीट अगेन लिस्ट। आप फूड की बात करें, सारे पॉइंट्स की बात करें? नहीं, ओनली फूड, ओनली फूड। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, जस्ट अ मिनट। क्वर्सेटिन रिच फूड्स में मैंने बताया आपको कोको, मैं थोड़ा धीमे बोल रही हूँ जिससे कि सब लोग नोट कर सकें। कोको, टोमेटो, ऑनियंस, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि नींबू, देन यू हैव स्प्राउट्स, ब्रोकली, ग्रीन टी, एप्पल पील, बेरीज। तो ये कुछ सोर्सेज हैं फूड्स के जहां पे हमें क्वर्सेटिन लेवल्स हमारे मेंटेन हो सकते हैं। कोई भी हमारी स्टेप वाइज गाइड कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि हम गट की बात नहीं करें। गट में हमारे एक कॉलोनी होती है, एक बैक्टीरियल कॉलोनी होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। इम्यूनिटी का जो हार्ट है, यानी उसका जो दिल कहा जाएगा, तो वो हमारे गट में लोकेटेड होता है और ये काम करते हैं प्रोबायोटिक्स। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक्स का नाम आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसमें कर्ड, जो भी फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे कि डोसा, अप्पम, ढोकला, और हमारे पास दूसरे सोर्सेज हैं फर्मेंटेड फूड्स के, जैसे कि हमारे पास डोसा हो गया, इडली हो गई, ये सोर्सेज हो गए। और ये सोर्सेज क्या करते हैं? ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हमने देखे कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जैसे कि फर्मेंटेड मस्टर्ड सीड्स चटनी होती है, कांजी हमारे घरों में बनती है, हमारे पास है कैफीर है जो आजकल लेटेस्ट एक्सोटिक फूड्स में कैफीर है, कंबूचा है और कसौंदी। और ये जो कांजी है, ये सारे क्या, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया को हमारे शरीर को अच्छा बैक्टीरिया प्रदान करते हैं हमारे गट के लिए, यानी हमारे स्टमक के लिए। तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करने में हमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जब भी हम
स्टेप वाइज गाइड की बात करेंगे इम्यूनिटी के लिए, तो हमें वी हैव टू बी पैकिंग आवरसेल्व्स, पावर पैक करना है किससे? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम क्या है? ये हमें इन्फ्लेमेशन या कोई भी क्षति से हमें बचाते हैं। तो इसके लिए जब हम नॉन वेजिटेरियंस की में जब बात करते हैं तो नॉन वेजिटेरियंस फिशेस के थ्रू ले सकते हैं, जैसे कि बांगड़ा, मैकरल। और वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या होगा कि सीड्स, अगर हम 2 सर्विंग लेते हैं सीड्स की, सीड्स में यानी मिक्स सीड्स ले सकते हैं आप, पंपकिन सीड्स हो गए, सैफफ्लावर, सनफ्लावर सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो ये सारे सीड्स हो गए। इसके अलावा वॉलनट्स के थ्रू भी हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काम ये है कि ये हमारे हार्ट और ब्रेन को भी हेल्प करते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो ये एंटी कैंसर भी होते हैं। इसके साथ साथ कुछ मात्रा हमें एवोकाडो जो फ्रूट है उसके थ्रू भी मिल सकता है। ये तो बात हो गई हमारे स्टेप वाइज गाइड की कि हम क्या कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। और हमें ये भी ध्यान देना है कि इम्यूनिटी जो है, जब भी मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ तो ये नहीं है कि मैंने आज खाया और तुरंत मेरी इम्यूनिटी बढ़ गई। ये स्टेप वाइज गाइड क्या हेल्प करना है कि आप डेली मेंटेन कर सकें अपनी इम्यूनिटी। तो इससे क्या होगा कि इम्यूनिटी एक ऐसे लेवल पे आपके आएगी, अगर आप प्रॉपर ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। तो ऐसे टाइम में जिन लोगों ने ऐसी चीजों पे ध्यान दिया है या दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, दे विल बी एबल टू मेंटेन देयर इम्यूनिटी लेवल्स एट अ वेरी प्रॉपर स्टेट। बहुत अच्छी तरह से वो अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप कर सकते हैं ऐसे मेंटेन करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्विक फूड्स की। दीज आर सर्टेन क्विक फूड्स, बहुत रेडी रेकनर्स हैं, जैसे कि लिस्ट करना पड़े कि क्या क्या अच्छा है। तो हम पहले बात करेंगे तुलसी लीव्स की। तुलसी सभी को पता है कि बहुत अच्छे फायदे, बहुत सारे फायदे युक्त है हमारी ये होली बेसिल। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिन में थोड़ी पत्तियां हम अपनी ग्रीन टी में डाल सकते हैं, या हम इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। ये तो पहले फूड की बात हो गई। दूसरा फूड हमारा हो गया गार्लिक या अनियंस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम इम्यूनिटी बिल्डिंग या इन्फेक्शन फाइटिंग की बात करते हैं, जब भी क्षमता बढ़ानी है हमें अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमें गार्लिक और अनियंस को भी ध्यान देना है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है टर्मरिक। तीसरा फूड जो इम्पोर्टेंट है वो है टर्मरिक या हल्दी। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे अपना हाइड्रेशन लेवल ठीक करें, तो उसमें मैंने टर्मरिक वाटर की बात की थी। तो टर्मरिक वाटर आप ले सकते हैं, या गोल्डन मिल्क क्या, हल्दी वाला दूध। तो उसमें हम चुटकी भर हल्दी, एक 1 या 2 पिंच ऑफ, 1 या 2 चुटकी हम हल्दी डालते हैं अगर मिल्क में, तो वो हमारा गोल्डन मिल्क हो जाता है। और ये जो है गोल्डन मिल्क, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि टर्मरिक अपने आप में, जैसे मैंने बोला, एंटीऑक्सीडेंट या इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये टर्मरिक जो होती है, इसमें क्या, जो इसका एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है कर्क्यूमिन। अब 1 टीस्पून फ्रेश जो हल्दी है हमारी, टर्मरिक है, उसमें कम से कम 200 मिलीग्राम ऑफ कर्क्यूमिन होता है। और हमारे शरीर को रोज कितने मात्रा चाहिए, 500 से 1000 मिलीग्राम ऑफ कर्क्यूमिन चाहिए। तो ये हमें आसानी से हमारे इंडियन डाइट से तो हमें मिल जाती है, और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्यूनिटी बिल्डिंग में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम कैरेट्स, जो कि गाजर, कैरेट्स और लेंटिल्स में हमारी दालें हो गई, हमें इनका बहुत अच्छे से सेवन करना है, लिबरल अमाउंट्स में सेवन करना है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है काली मिर्च। तो काली मिर्च को हम अपने ग्रीन टी में या हम अपने टर्मरिक वाटर में थोड़ा सा भी अगर हम डालते हैं, तो वो क्या करेगा, वो हमारे गट को, जैसे अभी हमने प्रोबायोटिक्स की बात की थी, तो गट की बात की थी, तो गट के इन्फ्लेमेशन में या उसकी हानि से ये काली मिर्च हमें बचाएगी या उसकी रोकथाम करेगी। ये तो कुछ फूड्स इम्पॉर्टेंट थे ही। इसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव कंसंट्रेशन किस पे रखना है, प्रोटीन पे। प्रोटीन पूरा गेम बदल सकता है, पूरा गेम चेंजर का काम कर सकता है, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए। अगर हमने प्रोटीन पे ध्यान नहीं दिया तो हम ये इतने ध्यान से नहीं अपना जीत पाएंगे। तो हमारा फोकस एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए क्या होना चाहिए, प्रोटीन पे होना चाहिए। अब प्रोटीन क्या है, प्रोटीन बना है, यूनिट्स किसके हैं उसके, तो उसमें अमीनो एसिड्स, जो अमीनो एसिड्स हैं वो यूनिट है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमें रोज हमें लेना है अपने डाइट में प्रोटीन। ये प्रोटीन हमें जो भी हम फूड लेते हैं उसमें
उससे क्या डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा प्रोटीन। हमने अपने रिसर्च में देखा कि हमने 60+ लोगों पे रिसर्च करी और हमने देखा कि उनके डाइट्स में 50% डेफिशिएंसी थी प्रोटीन के लिए। तो हमने उनको एडवाइस किया, हमने उनको डाइट प्लानिंग कराई और हमने उनको न्यूट्रिशन काउंसलिंग की। और उसके बाद हम वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर कि उनके जो प्रोटीन लेवल्स हैं वो 100% नॉर्मल रेंज में आ गए और उन्होंने न्यूट्रिशनल स्टेटस उनका काफी अच्छा हो गया। इसी तरह से कैंटर IMR भी एक स्टडी है, अभी रिसेंटली हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि इंडियंस में करीबन 68% प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ये स्टडी उन्होंने पूरे इंडिया में करी और इसमें लखनऊ में उन्होंने देखा कि 90% प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अहमदाबाद और चेन्नई में 84% लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी दिखी। मुंबई में 70% लोगों को ये डेफिशिएंसी दिखी और हमारा जो सिटी है दिल्ली, इसमें पता चला कि 60% लोग हैं जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम कितना ज्यादा हम प्रोटीन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, ये हमें इन स्टडी से पता चलता है। और ऐसा नहीं है कि खाली वेजिटेरियंस में, तो ये हमें जो पता चला वो 84% वेजिटेरियंस को ये डेफिशिएंसी थी, पर नॉन वेजिटेरियंस भी पीछे नहीं थे, उनको भी 65% नॉन वेजिटेरियंस में भी हमें ये डेफिशिएंसी नजर आई। अब जब डेफिशिएंसी की बात होगी तो क्वेश्चन आएगा कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए। तो हमें 60 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन भर में चाहिए होता है। पर ये बहुत सैड बात है, दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट टू कंसिडर कि हमारे इंडिया में आजकल खाली 10 से 30 ग्राम प्रोटीन ही लोग ले रहे हैं, विच इज जस्ट 1/3। तो हमारी डेफिशिएंसी लेवल्स आप देख सकते हैं कि कितने हाई हो गए हैं। मॉडरेट और एक्सेसिवली एक्टिव लोग सभी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये प्रोटीन क्या काम करता है, हमारा प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी बॉडी के हीलिंग में हेल्प करता है, रिकवरी में हेल्प करता है। तो हमें ये प्रोटीन इसीलिए जरूरी है लेना। अब जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात आई तो फिर दिमाग में आता है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी, कि हमें कैसे पता चले कि हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो बच्चों में आप देख सकते हैं कि अगर बच्चों में डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की तो उनका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होता है, यानी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको नहीं दिखेगा चिल्ड्रन में। बड़े लोगों की बात करते हैं तो एडल्ट्स में आप देखेंगे स्लगिश मेटाबॉलिज्म हो जाता है। स्लगिश मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है वेट रिड्यूस करने में। दूसरी चीज होती है लॉस ऑफ मसल मास, लूजनिंग ऑफ मसल्स इसमें हो जाती है, मसल्स में सैगीनेस आ जाती है। तीसरी चीज होती है लो एनर्जी लेवल्स, जब व्यक्ति उठते हैं तो दे वेक अप टायर्ड या नॉट इन अ गुड मूड, तो लो एनर्जी लेवल्स इसका एक साइन हो सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फॉगी ब्रेन में आ जाएगा कि मूडीनेस होगी, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होंगे या फिर इम्प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होगा। इसके अलावा लोगों में मसल या जॉइंट पेन की भी शिकायत होती है। देयर इज अ डिलेड हीलिंग ऑफ बोन्स, अगर कहीं चोट लग गई है तो हीलिंग इम्प्रॉपर हो जाती है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इंजरी या इलनेस या किसी घाव से भी जो रिकवरी होनी चाहिए वो बहुत स्लो हो जाती है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से फैटी लिवर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो आज के समय में जब हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत जोरों पर है, और अगर हमारी इम्यूनिटी लो है, हमारा रेजिस्टेंस कम है, तो उससे हमें बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि हमें क्या, इस कंडीशन में हमें फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, हमें फाइटिंग जो है हमारी एबिलिटीज को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? व्हाट शुड बी द वेज इन विच वी गेट द प्रोटीन इन गुड अमाउंट्स? तो कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे? पहली चीज है कि हमें देखना है कि प्रोटीन का क्या काइंड है, क्या सोर्स है और क्या अमाउंट ऑफ उसका प्रोटीन है हमारा। तो ये नहीं है कि हमें जस्ट एक बार ध्यान दे दिया हमने, नहीं, हमें इसको पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, हमें कॉन्स्टेंटली चॉक डाउन करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप देखो कि अगर कोई मॉडरेटली एक्टिव है या कोई सेडेंट्री है तो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स दिन भर में 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है। जो लोग एक्सरसाइजर्स हैं उनके लिए 1.25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो ये जो चीज है, ये जो लेवल्स हैं, ये हमें मेंटेन करने हैं
एग्जाम्पल सीधे तौर पे हम ले सकते हैं, कोई अगर पर्सन है जो 50 केजी का है तो उसको 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा। कोई पर्सन 90 केजी का है तो उसको समवेयर बिटवीन 72 टू 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए होगा। कोई बच्चा अगर 30 केजीज का है तो उसको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। बट हम बच्चों के साथ थोड़ा लिबरल हो सकते हैं बिकॉज द वेयर एंड टेयर एंड द एक्टिविटी लेवल्स आर वेरी हाई, तो हम उनको थोड़ा सा हायर उस पे भी वी कैन प्लेस देम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि रेनबो का पूरा स्पेक्ट्रम, जो पूरे रेनबो के कलर्स हैं वो हमारे डाइट में हमें दिखने चाहिए, और इसके थ्रू हमें जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं। अब सबका मन में एक सवाल आता है कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है और एवरीडे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारा जो है लॉस्ट हो जाता है बॉडी से, इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। और अगर हमारे शरीर में प्रोटीन के लेवल्स कम है तो क्या होगा कि बॉडी जो है मसल मास को ब्रेक करेगी, और बस मसल मास को इसलिए ब्रेक करेगी कि मसल प्रोटीन वहां से एक्सट्रैक्ट करेगी, और अगर एक्सट्रैक्ट वहां से हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो एक डैमेज कॉज कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रेडी रेफरेंस देती हूँ, वैसे फूड्स देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि आपके कौन से फूड में कितना प्रोटीन है। तो जैसे बात करेंगे, पहले मिल्क की बात करते हैं। 180 ml ऑफ मिल्क या 1 कप ऑफ मिल्क गिव्स यू 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली मीट जो कि है, मीट 30 ग्राम ऑफ मीट गिव्स यू 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। फिश 30 ग्राम गिव्स यू 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मटन 40 ग्राम्स गिव्स यू 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। कुछ दालें हैं जैसे कि सोयाबीन, वो 30 ग्राम आपको रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का सोयाबीन, किसमें, दालों में, दैट गिव्स यू 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बाकी सारी दालें जो 30 ग्राम्स हैं वो हमें 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन देंगी। जो हमारा दही है विच इज अबाउट 180 ml, वो हमें देगा 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। 60 ग्राम ऑफ पनीर हमें देगा 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि मस्टर्ड ग्रीन्स, एमरैंथ जो कि चौलाई, वो हमें 4.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन देंगे। फ्रेंच बीन्स हमें देंगे नियर अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हमारे पास पीज हैं, पीज हमें देंगे 3.6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं इनमें भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मात्रा में आपको प्रोटीन अवेलेबल हो जाएगा इनसे भी। तो हमारे पास एक क्विक है कि हमें क्विकली पता चल गया कि इन वेजिटेबल्स में है इन दालों में प्रोटीन है, और हमारे डे सोर्सेज तो हैं ही जो कि प्रोटीन रिच है। तो अब इसके थ्रू क्या होगा कि आप सबको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, आपको पता है कि कौन सी चीज कौन से सोर्स में कितना प्रोटीन है और आपको कितना प्रोटीन चाहिए। तो ये चीज आपको रेगुलरली वर्कआउट करनी है और इसको चांस पे नहीं छोड़ना है कि नहीं हम ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको इस पे वर्क ऑन करना है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा प्रोटीन अगर हमने एक बार में ले लिया तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारा जो गोल्स फुलफिल नहीं होंगे, हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि बॉडी हमारी एक्स्ट्रा जो भी है प्रोटीन को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो हियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे प्रोटीन को इन डिफरेंट मील्स, इन ब्रेकफास्ट, इन लंच, इन डिनर। तो इस स्प्लिटिंग की वजह से हमें अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन हमारी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि ओवरडोज की जैसे मैंने बात की, ऐसा होता है कि बॉडी जो है, हम एक साथ अगर कई बार बहुत हैवी प्रोटीन मील्स ले लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाती है, और इसी के लिए हमें ऑप्टिमली यानी जुडिशियली अपने प्रोटीन पे ध्यान देना है, हमें ध्यानपूर्वक अपने प्रोटीन पे वर्क करना है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन का किस तरह होगा, इसका पहला जैसे स्टेप मैंने आपको बताया वो है डिस्ट्रीब्यूशन। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोटीन को इन योर ब्रेकफास्ट, इन योर लंच एंड इन योर डिनर। सेकेंड थिंग है वेराइटी या वेरी करना प्रोटीन को, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं। हमें पता है कि डेयरी सोर्सेज नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो मीट्स हो गए, एग्स हो गए, फिश हो गए, एंड हमारे पास वेजिटेरियंस के लिए भी है, डेयरी है, वी हैव सोया, वी हैव पनीर, वी हैव टोफू। तो ये सारे क्या है, दे आर द वेरी गुड सोर्सेज। तो हमें रूटीन बोरिंग चीजों को हटा के वी नीड टू एक्सपेरिमेंट
एंड इस बुक में तो बहुत अच्छे रेसिपीज आई हैव सीन, तो आपके लिए तो इट्स विल नॉट बी अ डिफिकल्ट जॉब, इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेटिव थिंग, क्योंकि आप लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है कि हमारे ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में भी बहुत से ऐसे रेसिपीज बनते थे जो बहुत अच्छे से प्रोटीन रिच थे। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट हंट बैक, वी हैव टू गो बैक टू आवर एल्डर्स, वी हैव टू आस्क देम कि हाँ वो कैसे क्या करते थे, एंड वी कैन डेफिनेटली पंप अप द रिक्वायरमेंट। इस तरह से हम प्रोटीन की इंक्रीज कर सकते हैं। पहली हो गई डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होगा वेरिएशन, तीसरी बात करेंगे क्वांटिटी या क्वालिटी। तो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने बात की कि कंप्लीट प्रोटीन्स कैसे होंगे, डेयरी सोर्सेज होते हैं, मीट्स होते हैं, फिश हो गए और एग्स हो गए, और इसके साथ साथ सोयाबीन, ये क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स है। कंप्लीट प्रोटीन्स का मतलब क्या है, कंप्लीट प्रोटीन्स आर दोज व्हिच आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जैसे अभी हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड्स क्या है, वो यूनिट है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स में जो है, जो कंप्लीट प्रोटीन्स है उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, ये हमारे एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन से क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और आपको जान के बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि हमारे बाल, हमारी स्किन, सब में प्रोटीन होता है। तो हमें अपने, जब हम कंप्लीट प्रोटीन्स लेते हैं तो हमारी सारी चीजों की टेक केयर हो जाती है ऑल ऑफ अ सडन। तो नॉन एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं कि जो हमें फूड के थ्रू नहीं लेने, वो अपने आप बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं कि जो हमें फूड के थ्रू लेने हैं, जिससे कि वो फॉर्म हो सके हमारी बॉडी। सो ये सारे जो सोर्सेज हैं, टोफू, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, ये क्या कंप्लीट सोर्सेज हैं। जो हमारी दालें हैं, दालें हो गई या पल्सेस हो गए और सीरियल्स हो गए, ये क्या है, ये इनकम्प्लीट सोर्सेज हैं। इनकम्प्लीट सोर्सेज इसलिए हैं कि इनमें बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि जो सीरियल्स होते हैं उनमें लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, ये ट्रायोनाइन, ये जो होते हैं ये कम होते हैं, यानी इनकी कमी होती है, डेफिशिएंट होते हैं। और सीरियल्स में जो कम होते हैं वो है मिथायोनाइन। तो ये हम इसलिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा हम हमेशा दाल चावल, दाल खिचड़ी ऐसे हम बनाते हैं, क्योंकि हम इससे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे की जो कमी है इनमें अमाइनो एसिड्स की, उसकी हम कमी को पूरा करके हम एक कंप्लीटनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमारा काम बस कुछ नहीं है, हमें सिंपल थिंग्स को थोड़ा सा अब इनोवेटिव करना है, किसके लिए, ऑप्टिमाइजेशन या बैलेंसिंग के लिए, प्रोटीन के लिए। और एक वेरिड कॉम्बिनेशन बनाना है, एक कलरफुल, एक कंप्लीट हमें प्लानिंग करनी है वेरिएशन की। तो ये सारी बातें के साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई होती है। तो इन प्रोटीन के I think some connectivity issues, so please bear with us. Aditika, can you listen? I think, yeah, sometime you can't really control. कनेक्शन से निकल गई हैं। जब तक वो आते हैं, हमारे बीच में सीमा सूद जी हैं, मैं उनको खोल रही। अच्छा, सीमा जी, you can unmute yourself. Yes, सीमा जी।
कैन यू आ हियर रही है सीमा आवाज जी? मेरी? हाँ जी, आ रही है। जब तक वो ज्वाइन करती हैं, आप थोड़ा सा मोर्चा संभाल लीजिए प्लीज। सीमा जी, आपको आवाज आ रही है? सीमा हाँ जी, हाँ, ऑफ कैन यू कोर्स, हियर? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? हाँ, तो आपका बीच में कनेक्टिविटी हेलो, जा रहा है। हेलो, कि उनके पंख जो है सिर्फ एक खास सीजन में, जो शायद दिवाली के आसपास होता है, उस टाइम ही वो अपने पंख गिराते हैं। अगर उनको कहीं अलग टाइम पे कहीं पंख उनके गिरते हैं तो उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो उसकी मृत्यु होने लगी तो वो कहने लगे, दिल में उसने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो भगवान सबकी प्यास बुझाने वाले हैं, आज मैंने उनकी प्यास बुझा, आज मुझे उनकी प्यास बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भगवान जी ने फिर ये कहा कि अच्छा, अब तूने जो मेरे साथ किया है, मैं तुम्हारे इस ऋण का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो वही वो भगवान जो थे, अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए और उन्होंने उनका ऋण चुकाने के लिए मोर का पंख जो था वो अपने सिर पे धारण किया, मतलब। और वृंदावन में तो मोर के पंख के बने हुए वो फैन भी छोटे छोटे मिलते हैं। और जैसे भगवान को हम लोग करते हैं, थोड़ा क्या झुलाते हैं या क्या, तो उस तरह की चीजें बहुत मोर की मिलती हैं। तो भगवान ने अपना जो ऋण जो था मोर का, वो इस जन्म में उन्होंने उतारा है। बस यही था मेरी संगीता, आप कुछ यमुना के बारे में बताएंगे? अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं करा है। ओके हाँ, अभी नहीं। हाँ जी, ओके ओके, मैं अब थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में हाँ, बताऊंगी वही आपको। आपके लिए वेट कर रहे थे। तो यमुना नदी का हम सबको पता है उद्गम अच्छा, स्थान जो है यमुनोत्री है। और वैसे अगर आप उसको गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यमुनोत्री नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी झील है जिसको सप्तऋषि कुंड कहते हैं, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है। तो वहां जो है इसका उद्गम स्थान है, बट लोगों का बिलीव यही है कि यमुनोत्री है। और वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। वहाँ एक पहाड़ियों का पूरा एक क्लस्टर है जिसको बंदर पूंछ, उसकी ना ऐसे शेप ऐसे बनी हुई है जिगजैग वे में, तो उसको बंदर पूंछ क्लस्टर ऑफ हिल्स कहते हैं। और काला नाग पहाड़ी भी है वहां पर। और महाभारत में कलिंद पर्वत से उद्गम स्थल बताया गया है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी यमुना का उल्लेख है। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जमुना, यमुना, सूर्य तनया, आसित, कालिंदीजा। यमुना जो है सूर्य की पुत्री हैं। यमी भी कहा जाता है, वो यमराज की बहन है। और मिनी चारधाम यात्रा जो है यमुनोत्री, मतलब मिनी जो चारधाम यात्रा है उसमें यमुनोत्री भी एक है। और इसकी जो यमुना जो निकलती है वो हिमाचल से लेके और यूपी तक कवर करती है और जाके त्रिवेणी में खत्म हो जाती है। और हिमाचल में बहुत सारी 8-10 छोटी-छोटी नदियां उसमें आके मिलती। नहीं, मैंने किया। इस नदी के रास्ते में देहरादून में एक टोस नदी मिलती है आगे। और वहां पर एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है पौंटा साहिब, बहुत मान्यता है वहां पर। वहाँ 10वें जो इनके गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका 10वां ग्रंथ वहां रखा है। और उनके वहाँ बहुत सारे फाइटिंग वो रखे हैं जिसको लोग देश विदेश से देखा। सीमा जी, आपकी आवाज आ रही है। सीमा जी, आप प्लीज वहां पे मेरी बात ना आवाज आ रही करें। है? सुचिता, संगीता सुचिता, आई थॉट आई एम सीमा सूद। वहां तो 2 सीमा सूद निकल आई।
आपने कहा था कि सीमा सूद ने मैंने प्रोग्राम करवाया था, आप लोगों को मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था, वहां तो 2-2 सीमा सूद हो गई। आपने मुझे अनम्यूट किया। हाँ मैम मेरा नाम भी तो सीमा सूद है। ओ मुझे नहीं पता था ना। सीमा जी, संगीता बता रही है यमुना के बारे में, उसके बाद आपसे हम कदम के बारे में सुनेंगे। इससे सुनेंगे पता नहीं। टू मीटिंग नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, देयर मस्ट बी थर्ड सीमा सूद। आगे बोलूं? संगीता आप अपना कंप्लीट करो, संगीता आप अपना कंप्लीट करो, फिर सीमा जी कदम के बारे में बताएंगी हमें। ओके, कनेक्टिंग यमुना टू कृष्णा। तो कृष्ण जी का जो बचपन का वो है, वो काफी कुछ यमुना से कनेक्शन था। और बताते हैं कि यमुना जी बहुत प्रेम करती थी भगवान कृष्ण को, और उन्होंने भगवान कृष्ण को कहा था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और इनकी 8वीं पत्नी कहलाती हैं यमुना जी जो है। और जब इनको ये पैदा हुए थे, तो वासुदेव जी जब उनको टोकरी में लेके जब निकले थे, तो यमुना जी उनको देखना चाहती थी, उनके चरण स्पर्श करना चाहती थी, तो भगवान कृष्ण ने अपने पैर लटका दिए थे। और यमुना बहुत तूफान खा रही थी, तूफान आ रहा था, उनके पैर छू के वो बिल्कुल शांत होके उनको रास्ता दे दिया था, और वो आगे चले गए थे। एक स्टोरी और है कृष्णा से कनेक्टेड, कि वो यमुना किनारे खेल रहे थे, और उनकी बॉल जो है नदी में, यमुना नदी में चली जाती है, और वहां कालिया नाग रहता है, जिससे उसको उन्होंने मार दिया था, और उसने अपने जहर की वजह से भगवान कृष्ण वहां से काले हो गए थे। एंड यमुना नदी को हिंदू गॉडेस की तरह पूजा जाता है, सूर्य पुत्री है, और यमराज की बहन है, सूद बोलेंगे तो 2 सीमा सूद हो गए। अष्टभार्या कहलाती हैं, 8 कृष्णा की। एंड कालिंदी भी बोलते हैं इनको। और यमुना जी के बारे में तो इतना ही है। जेमस्टोन 5, ये ब्रह्मा जी के उसकी 5वें सिर जैसी पावर थी, सफायर की पावर थी इनके पास। और शनि की पत्नी भी कहा गया है इनको कहीं। बस इतना ही है यमुना के बारे में। और बाकी जो अभी प्रेजेंट यमुना है, इसमें देयर इज नो ऑक्सीजन लेवल। हमने इतनी पॉल्यूट कर दी है, वो नदी ना रह के गंदा नाला, स्पेशली जो दिल्ली उसके अराउंड सारा गंदगी उसमें जाती है यमुना। एंड हमें अपनी कंट्रीब्यूशन इतना दे सकते हैं कि हम उसमें गंदगी ना डालें, बाकी तो गवर्नमेंट का काम है देखना कि यमुना को साफ करें। कोई बोले तो थोड़ी होगा, फिर तो नहीं होगा ना। सीमा जी यू कैन गो अहेड। आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ, नहीं ये देखिए, लॉर्ड कृष्णा का जो प्रोग्राम मैंने अरेंज किया था, क्योंकि कृष्णा वाज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ नेचर, तो इसलिए जो उनकी प्रिय वस्तुएं थी उनका सबका मैंने इनको कहा था थोड़ा रिसर्च करके इसके ऊपर बोलें। तो ये 3-4 साल पहले हमने प्रत्यक्ष में किया था, काफी सक्सेसफुल हुआ था। तो इस बार भी हमने म्यूट इसमें किया था जूम के ऊपर। तो इसका ये है कि हम लॉर्ड कृष्णा के बारे में, पर नेचर के जो प्रोटेक्टर थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कदम्ब का वृक्ष के बारे में मैंने बोला था कि आजकल लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हमको फिर से उसको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्री का नेटिव ट्री है ये कदम्ब। और ये कदम्ब का पेड़ कम से कम 30-35 फुट ऊपर जाता है, और बहुत ही बहुत बढ़िया इसकी छाया होती है, बड़े बड़े इसके पत्ते होते हैं, और इसका फूल जो होता है वो बॉल के समान होता है, और वो एकदम लाइट येलो कलर का होता है। उसके अंदर ये फूल का गुच्छा है एक्चुअली, उसके अंदर कम से कम 800-900 फ्लावर्स होते हैं, और वो जब सारे कन्वर्ट होते हैं तो 800-900 बीज उसमें पैदा होते हैं। तो इसलिए, और उसका जो प्रोपोगेशन है वो बीजों के द्वारा होता है। इसको पशु पक्षी लोग बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। और लॉर्ड कृष्णा के बारे में ये कहा गया है कि वो इस वृक्ष के नीचे बंसरी बजाया करते थे उनको, क्योंकि इस फूलों के अंदर बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है।
तो वो जो खुशबू चारों तरफ फैलती थी, और ये ऐसा भी कहा गया है कि वृंदावन में करीब 2-3 हजार साल पहले बहुत सारे पेड़ वहां पर थे कदम के। तो ये कदम का पेड़ अच्छी छाया तो करता ही है, लेकिन इसमें बहुत ही बढ़िया तरह की खुशबू निकलती है। और लॉर्ड कृष्ण इसके नीचे बंसी बजाते थे, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी रिलीजियस वैल्यू भी है। हमारा अपना नेटिव पेड़ है इंडिया का, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको रिवाइव करें। मैंने अभी अपने कॉन्डोमिनियम में 2 कदम के पेड़ लगाए, और खैर टाइम लगेगा उनको बड़े होने में, लेकिन थोड़े 4-5 साल के बाद छोटे छोटे फूल उसमें शुरू हो जाते हैं। और ये कदम के बारे में यही मैंने बताया था। बाकी हमारे जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च करके लॉर्ड कृष्णा के बारे में बताया था, उनकी प्रिय वस्तुओं के बारे में, बंसरी के बारे में किसी ने बताया था, कौन से बांस की बनाई जाती है, वो सब बातें उन्होंने बताई थी। तो अभी ये न्यूट्रिशन का कब शुरू होगा? न्यूट्रिशन का जो हो रहा है, हाँ वो चली गई ना लेडी, क्या पता। Can I join? Am I audible? Am I audible? Okay, sorry for the inconvenience. I was discussing about the high protein requirements. So high protein requirements हमारे कुछ ऐसे, जैसे सर्वे ने हमें ये जो स्टडी, हम ऑल इंडिया वाली स्टडी थी, इसने ये शो किया कि एक फोकस डाला, एक लेंस डाला किनके ऊपर, एल्डरली के ऊपर, ऐसे एथलीट्स के ऊपर, और कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स बहुत होते हैं, बिकॉज स्ट्रेस में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या करता है, दैट रिप्लेनिशेस द मसल मास। प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि जो मसल मास है उसका बिल्डअप इंक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है 1.5 टाइम्स नॉर्मल के से होती हैं। तो इसमें जो है एटलीस्ट 14 ग्राम्स अगर हमें मिलता है तो वो बहुत हमारे लिए मोर देन इनफ है। और बहुत ज्यादा जो सप्लीमेंट्स लेते हैं जैसे 35 ग्राम्स या 38 ग्राम्स, तो उसका जो है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया सारा कुछ, कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पाएगा बॉडी में, और वो एक्स्ट्रा जो है वो वेस्ट की तरह ही ट्रीट होगा बॉडी के। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में जब आप सप्लीमेंट्स लेती हैं तो आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की हेल्प से उनको प्रिस्क्राइब करवाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल स्टेट्स के लिए, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट करा, हमने सब देखा कि कैसे कैलकुलेट करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स कैसे मैच करनी है, तो उसके थ्रू इजिली मीटअप हो जाता है। तो इसके थ्रू अगर हम जैसे 15 ग्राम्स तक अबाउट अगर प्रोटीन हम ले रहे हैं अपने एक मील में, तो वो इजिली डाइजेस्टेबल है, हमारी बॉडी पे ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा स्टमक है, वो इजिली उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, कई बार जब ओवरलोडिंग अमाउंट जब इंक्रीज होता है तो ओवरलोडिंग हो जाती है, उसकी वजह से वी व्हाट वी फील इज फुलनेस आ जाती है। आप फिर उसके बाद किसी प्रोटीन आपने कोई प्रोटीन फूड लिया या कोई प्रोटीन बेस्ड ड्रिंक लिया, उसके बाद आप कुछ और नहीं खा पाते हैं। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा 15 ग्राम का जो ब्रैकेट है वो मीट हो, और उसके थ्रू क्या होगा कि हमें दूसरे फूड्स है हम होल फूड्स के फॉर्म में हम ले सकते हैं। वी कैन टेक मोर ऑफ होल न्यूट्रिएंट्स। सो आई होप विद दिस दैट इट वुड बी अ वेरी, आप सब अपने आप से अब नाउ यू विल बी able to calculate the requirements for proteins. You will now be informed for this, and this is the most important thing, that we take care of ourselves. And with this hope, I just wish that all should stay safe and maintain a very healthy immunity by following all these steps. Thank you Aditika, it was really nice. And रूपा जी, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। हाँ जी, ठीक है।
तो अदिति का संगीता आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बताती Definitely. रहेगी, आप उसका आंसर्स प्लीज कर दीजिएगा। Definitely. संगीता, go ahead. Hi, Aditika. I am reading out the questions Hello. people have asked. Can you hear me? Yes. Okay. Yes, you are audible. Yeah. Okay. Somebody is asking, what about thyroid? What should one take in thyroid? Thyroid is a condition. It's because it can be hypothyroidism also and can be hyperthyroidism also. So hypothyroidism जो condition है उसमें what we'll see is the weight loss, and hyperthyroidism में आप देखते हैं there is a tendency of obesity या water retention. तो उसके लिए हम ऐसे recommend करते हैं जो cabbage जैसे cruciferous vegetables हैं वो आपको avoid करने चाहिए because they deplete the amount of iodine. तो वो आपको ऐसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो कैबेज जैसे हो गया तो वो आपको उससे अवॉइड करना चाहिए. And how about they say soya protein also the thyroid people should not take? Soya protein, as I told you, actually soya protein is a complete protein. So biological value of soya is the highest. आपने जैसे हमने पूरा भी डिस्कस किया तो उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो मीट्स के अकॉर्डिंग है. वो ओनली वेजिटेरियन सोर्स है जो मैच करता है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज को. और इसमें क्या एक टेंडेंसी होती है कि जो सोया है दैट इज अ थिनर, मतलब वो वेट लॉस में वो करता है. तो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है उनको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए बिकॉज सोया विल कॉज वेट लॉस. बट आप वंस इन अ व्हाइल हैविंग सम अदर वेज मतलब सोयाबीन नहीं लेके यू कैन हैव अ मिक्स, जैसे कि हमने बात की मिक्स्ड नट्स, और यू कैन हैव जैसे यू कैन हैव अ yogurt में you can add some seeds, some nuts, and then you can consume that. So that would be meeting your protein requirements. नहीं, पर जिनका वेट बढ़ता है they can take that? Yes, they can take, of course they can take sugar. जो आप sugar नहीं डालेंगे, मैंने आपको जैसे बोला nuts आप डाल लेंगे, you can put a little bit of raisins also will not do any harm. Berries डाल सकते हैं, मतलब जो भी seasonal fruits हैं you can add them and replace it with sugar. Sugar नहीं डाल के you can add the natural sweeteners हो गए हमारे fruits, और उसके बाद हमने nuts डाल लिए, और फिर उसमें curd भी जो है that is a very good component. It is having a weight loss. तो curd जो है हम जिनको भी weight loss target करते हैं वो curd जो yogurts हैं वो बहुत help करते हैं weight loss. Definitely कोई smoothie या कोई yogurt can definitely have without sugar. Okay, and how about mushrooms? They are high in protein, and what else? Mushrooms are also having proteins, but बहुत ज़्यादा जैसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन नहीं है इसमें. थोड़ा बहुत जैसे मैंने बाकी वेजिटेबल्स की भी बात की कि मस्टर्ड लीव्स हो गए हमारे, बथुआ हो गया, एमेरैंथ है जो चौलाई हम कहते हैं, तो ये सारे भी हमको प्रोटीन्स देते हैं. उसी की तरह हमें मशरूम्स भी दे आल्सो गिव अस लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन. बट इट इज हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स. तो मशरूम्स का इसलिए ज्यादा हम फोकस देखते हैं क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, उनमें फ्री रेडिकल फाइटिंग एबिलिटीज हैं उनमें. तो जो आजकल जो टाइम है वो क्या इन्फ्लेमेशन का जैसे मैंने बात की, तो उसकी क्या हेल्प होती है उससे मशरूम्स में दे हैव दी एंटीऑक्सीडेंट्स जो हेल्प करते हैं कि वो फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं. तो ये फ्री रेडिकल फाइटिंग एलिमेंट्स भी मशरूम्स में होते हैं. Somebody is asking how to improve the digestion of protein in senior citizens because it's difficult to digest. Yes. So सीनियर सिटीजन्स कैन हैव, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज बहुत सारी थी. हम घर में होममेड पिकल्स की बात कर सकते हैं, हम कर्ड्स की बात कर सकते हैं. सीनियर सिटीजन्स अगर मिल्क को टॉलरेट करने में इफ दे हैव अ प्रॉब्लम दे कैन ऑप्ट फॉर पनीर, दे कैन ऑप्ट फॉर टोफू, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस फर्मेंटेड ये पिकल्स, होममेड पिकल्स. they can opt for paneer, curds. तो ये सारे sources हैं जो कि they are good in protein. And nuts. तो nuts को जैसे कि if you can mix them with yogurt or smoothie, and you can add seeds. जैसे seeds हो गए हमारे pumpkin seeds हैं आजकल, sunflower, flax seeds. ये सारे seeds भी उसमें अगर आप करते हैं with nuts, almonds हो गए, walnuts हो गए, तो ये सारा बहुत कुछ help करेगा आपको protein requirements meet करने में. So can we take protein-rich food for dinner?
यस मैंने जैसे बात की कि प्रोटीन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स आपने जैसे देखा 60 to 80 की है होती हैं नॉर्मल इंडिविजुअल्स की, और हमारा इनटेक इतना नहीं हो पाता है, तो हमें इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है विद इन द डे, यानी बिफोर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। अगर हम 4 मील्स लेते हैं तो, अगर हम 3 मील्स लेते हैं तो हमें उसको इक्वली अपने 3 मील्स में डिवाइड करना है। और थोड़ा ये हमें देखना है कि डिनर में हमारा कंपोनेंट जो अगर हम थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा कम कर सकते हैं तो वी कैन डेफिनेटली, क्योंकि ओवरलोडिंग भी हमें नहीं करनी है उसकी, तो हम डिनर में भी वी कैन हैव सम दाल सूप्स, वी कैन हैव सम पनीर बेस्ड रेसिपीज, एंड देन वी कैन मीट आवर रिक्वायरमेंट्स फॉर डिनर ऑल्सो। और वी कैन हैव बड़िया, जैसे कि मूंग दाल बड़ी हो गई। तो ये सारी जो रेसिपीज हैं ये क्या है, दे आर प्रोटीन रिच रेसिपीज, एंड एज वेल एज दे आर मीटिंग द they are good combination for dinner. And what do you have to say about having milk at night? मिल्क एट नाइट इज वेरी गुड। मिल्क का बल्कि मुझे आपको बोलना भी है कि मिल्क को 2 टाइम लें तो बहुत अच्छा है। मिल्क को या तो अर्ली मॉर्निंग, जैसे हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम में लें, या फिर नाइट के टाइम में लें। एंड विद गोल्डन मिल्क की जैसे मैंने बात की, आजकल का टाइम है तो हम थोड़ा सा अगर उसमें हल्दी डाल के लेते हैं मिल्क, पिंच और 2 पिंच, 1 या 2 पिंच अगर हम हल्दी डाल के लेते हैं तो बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। तो वो बहुत तो आइडियल है अगर आप नाइट में ले सकते हैं तो बिफोर बेड टाइम। Okay, Aditika, what do you have to say for people those who are not on, they are off the animal product like they are taking vegan diet? Yes. So what do you have to say? I think Sarla ji is always on a vegan diet. Okay. So what do you have to say? हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। जैसे हमने बात की थी टोफू की बात की थी, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, दे आर डेयरी फ्री। तो ये इसमें आप ऐसे ऑप्शंस को कर सकते हैं। नट्स, ऐसे में क्या करेंगे, नट्स एंड सीड्स का हम कॉम्बिनेशन सर्विंग्स हम अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स के थ्रू, जैसे कि हमने बात की कि जो भी ब्रोकली हो गई, स्प्राउट्स हो गए, हम इनके थ्रू अपना इनटेक मीट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट लाइक कि मिल्क में ही हमें कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। हमारे पास सीड्स हैं, हमारे नट्स हैं, और ये हमारे साथ एक और बेनिफिट है कि हम अगर ये नट्स वगैरह ले रहे हैं तो हम उससे भी अपना प्रोटीन मीट कर सकते हैं। तो हमें इसके साथ साथ आपको पता है कि जैसे आलमंड मिल्क है, बहुत इजीली ये सब बन जाते हैं। आलमंड मिल्क बना सकते हैं हम, कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। तो जो लोग डेयरी फ्री मतलब की तरफ हैं तो वो ये सारे ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उससे भी उनके इजीली मीट होते हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। So this question was not asked, I just asked you. नहीं कोई नहीं, दिस इज मोर नाउ बिकॉज एक्चुअली लोग लैक्टोज फ्री भी जाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और कोकोनट मिल्क तो अभी रिसेंटली मैंने देखा कि किसी शायद डाबर ने ही वो कोकोनट मिल्क में भी वो आ गए हैं। तो ये सारे अगर जैसे जो लोग नहीं फ्रेशली अगर नहीं उसको घर पे कर सकते हैं, तो आजकल कंपनीज भी ये सोया मिल्क और ये कोकोनट मिल्क को पैकेज के फॉर्म में देते हैं, तो उससे भी मीट हो सकते हैं हमारे प्रोटीन। Let's go to the next question. Somebody is asking, how long should we expose ourselves to the sun? हाँ, एक्सपोज जैसे टाइम मैंने बताया आपको कि 11 to 3 इज द आइडियल टाइम। और उसमें हम गार्डनिंग कर रहे हैं या हम कोई अपनी गार्डन में ही बैठ गए कोई बुक लेके, अगर वैसे कंटिन्यूअसली बैठ सकते हैं फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे, तो बहुत ही अच्छा। और उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा एक्सपोज करना है आपके बॉडी सरफेस को। ऐसा नहीं कि पूरा क्लोथिंग करके फुली कवर होके बैठ गए, ऐसा नहीं है। आपके थोड़ा सा जो जॉइंट्स हैं जैसे यहाँ पे ओपन होना चाहिए, तो उससे जितना आप अपनी स्किन को जितना एक्सपोजर देंगे सन में, उतना ही वो विटामिन डी को मतलब सिंथेसाइज करेगी। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तो बैठना ही। और अगर रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रेक्स में, जैसे कि 10 to 20 मिनट्स के ब्रेक्स में बैठ गए, 10-15 मिनट्स के ब्रेक में बैठ गए एक बार में, बाकी नेक्स्ट बैठ गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं इंटरवल्स में भी। तो Somebody say allergic to sun allergy. सन एनर्जी है तो फिर दे हैव टू टेक इट थ्रू द सोर्सेज ऑफ मिल्क। जैसे मिल्क में भी थोड़ा बहुत विटामिन डी है, तो वो आप जब अगर हल्दी वाला दूध ले रहे हैं थोड़ा सा, तो आपको वो टर्मरिक वो आपको विटामिन डी थोड़ा सा हेल्प करेगा सिंथेसाइज होने में। और बाकी देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग सप्लीमेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर और अ डाइटिशियन। Okay, and not possible. Okay.
And somebody saying 3 liter means all kind of fluids? Yes, all kinds of fluids. ये हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, 2 to 3 liters. इसमें आप कोकोनट वाटर भी देख सकते हैं, इसमें आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, टर्मरिक वाटर, ग्रीन टी. बट कैफीन, you should restrict caffeine like tea and coffee because they have anti-hydration status. वो मतलब hydration के लिए they are not good for the body. Okay, I think that's the last question I'm going to ask. I'm having severe pain in my knee due to arthritis and having inflammation. Taking vitamin D, calcium, and methocobal as advised by doctor. My immunity is also not very strong. Which vegetarian food will help me? That's the last question. Okay. Oh, no, there are more. Sorry, there are more. Yeah. So you can answer this. Yeah, I will answer this first. You need to take, you have pain, you have told me you have inflammation, and you have been recommended calcium and vitamin D, as I could hear you, and vitamin B12. So these you are taking vitamin D, calcium, and B12. Methocobalamin is vitamin B12. Yeah, So you are taking these supplements. Actually, for you, I would recommend that certain times what happens is that we take citrus foods like tomato or curds in the night. So we should avoid. Excuse me. This causes inflammation to increase. तो अगर अब joint pain है या कोई ऐसा तकलीफ है तो रात में please curds और tomato के जो products हैं, citrus जो हैं वो थोड़ा avoid करें, and try to make your palette, जैसे हमने बात की, as colorful as possible. अगर आप अपनी plate पे देखते हैं कि different type of colors present हैं तो आप excuse me, तो आप ये समझ जाइए कि आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं. जैसे कि सैलड्स हो गए हमारे, अगर आप पनीर ले रहे हैं तो पनीर में थोड़ा सा आपने स्प्राउट्स में पनीर डाल लिया, थोड़े नट्स डाल लिए, थोड़े सीड्स डाल लिए, तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपको और तिल, हमारे जैसे तिल जो है, देयर आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम. तो ये भी अभी जैसे कि चेंज ऑफ वेदर होगा तो हम उसके थ्रू भी वी कैन इंक्रीज आवर प्रोटीन एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स. तो ये क्या करते हैं हमारे मखानास, yet another is मखाना आर वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन, फॉर जॉइंट पेन. तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम के रिच सोर्स होने की वजह से ये आपके ईज करते हैं, आपके जॉइंट्स को हेल्प करते हैं फंक्शनिंग में. तो ये सारे नट्स आपको बेनिफिट करेंगे इफ यू आर टेकिंग देम प्रॉपर्ली, डिस्ट्रीब्यूटिंग देम. हेलो अदिति. Hello, Aditi. Palu se deva. Is the fresh turmeric is better or a powder one in a milk? Fresh means कच्ची हल्दी powder milk में boil करके लेना better है या powder one is better? Fresh turmeric is also good. You cannot deny that fact because fresh है तो उसमें और भी उसके curcumin levels बहुत सही होते हैं. तो आप fresh भी अगर आपको available है easily तो आप fresh का भी you can have the fresh turmeric also. Okay, because I've taken for the last 13 years the milk. Okay. So okay. Said कि powder one is better than fresh one. That's why I asked you the question. नहीं, वो ड्राई, एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्राई कर्क्यूमिन है उसमें आपको 200 मिलीग्राम ऑफ कर्क्यूमिन मिलेगा जो पाउडर फॉर्म में है, और हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स आर बिटवीन 500 to 1000 मिलीग्राम्स. तो आपको उससे यू आर गेटिंग अबाउट 200 मिलीग्राम्स ऑफ कर्क्यूमिन. सो यू कैन एक्सरसाइज जब, क्योंकि सारे टाइम तो आपको फ्रेश अवेलेबल भी नहीं होती कर्क्यूमिन, तो आपको जब फ्रेश अवेलेबल नहीं हो देन यू कैन शिफ्ट टू द ड्राई सोर्स ऑफ टर्मरिक. हाउ कैन यू मेक टर्मरिक वाटर? यस, टर्मरिक वाटर का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यू कैन मेक इट इवन योर ग्रीन टी ऑल्सो. अगर आपको जैसे टर्मरिक वाटर ऐसे नहीं लेना है तो आप अपनी ग्रीन टी में, एक्चुअली मेरे पास एक लास्ट में आई हैड वन डिकॉक्शन, आज मैं प्रेजेंटेशन में सबके साथ एक शेयर करना चाह रही थी. एक क्वाथ या डिकॉक्शन है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकमेंड किया है इस कोरोना टाइम में. So I will give that presentation to Rupa aunty and she'll share with the group. तो वो काढ़ा भी उसमें it is very good sort of क्वाथ या decoction जो help करेगा आपको immunity build करने में, and it is as helpful as turmeric water. Now coming to the question of turmeric water can be made, आप ऐसे भी उसको ले सकते हैं. You can have a lukewarm water, you can
add a pinch of turmeric with it, and you can if you are having a taste for lemon, you can add a little bit of lemon or a little bit of jaggery powder, and you can have it. And if you don't want like this, तो आप green tea में भी अपने जो मैं जैसे करती हूँ, मैं अपनी green tea में थोड़ा सा pinch of turmeric add कर लेती हूँ, तो वो भी that is also a kind of turmeric water. Okay, can you suggest something for severe acidity? Severe acidity, you can have a glass of cold milk, जब भी acidity हो, and you can have with that, you can have curd. Curd is very good in acidity, in fighting acidity. So curd based कोई अगर आप ले रहे हैं कोई snack curd based, या फिर आप simple cold milk ले रहे हैं, or even an ice cream, that will help you in relieving the acidity. Yeah, and few people have asked that they cannot, they have thyroid and they cannot take soya. So I think you have answered that. Yes. I have the problem of antibodies, thyroid and uric acid both. So how should manage protein diet? In this, what happens is that you cannot take soya bean, but you can take it from other sources. जो दालें हैं, जैसे हम दूसरी दालें ले सकते हैं. We can have with the, you can have, you will avoid meats in this, but you can have, if you're a non-vegetarian, but you can have through nuts. जैसे हमने बात की, तिल seeds are there. They're very good in calcium, as well as they have a little bit of protein. And आप दूसरे vegetable sources हो गए, जैसे कि French beans हो गए, and we have this peas. So वो आप limit में अगर आप ले रहे हैं, तो कोई, that will not cause any problem in your uric acid increasing. Okay, someone is asking, can we have the protein drinks of Amway? हमने जैसे अभी बात की थी सप्लीमेंट्स की, तो ये हम नॉर्मली तो जैसे हम बात कर रहे थे, नॉर्मली इट्स नॉट, वी कैनॉट, हमको मतलब ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए प्रोटीन्स के लिए, बट सर्टेन कंडीशन में कोई एक्सरसाइज कर रहा है या कुछ किसी को इंजरी हुई है, तो उस कंडीशन में अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आप ये देख लें कि वो एक ट्रस्टेड ब्रांड हो. पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है. और 14 ग्राम्स जो है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं 14 to 50 ग्राम्स, 15 ग्राम्स जो है, 14 से 15 ग्राम जो है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है एक बार में. तो अगर वो आप देखेंगे उसके पीछे सर्विंग में, उसमें लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स में कि कितना, उनके लेबल में दिल मेंशन कि कितना अमाउंट है उसमें. तो अगर आपको लग रहा है कि इट्स मोर देन 15 ग्राम पर सर्विंग, देन इट विल गो वेस्टेड. तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप उसका हाफ सर्विंग कर सकते हैं, जितना सर्विंग साइज उसमें लिखा है, अब उसके हाफ सर्विंग लेके देन यू कैन टेक दैट सप्लीमेंट. अदरवाइज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट थ्रू योर डाइट. तो डाइट भी I don't know the group or age group of the person who has asked the question. So if it is possible to meet it from the diet, तो पहला फोकस वही करना चाहिए कि हम नेचुरल सोर्स से ही उसको मीट कर सकें अपने RD, यानी जो भी हमारे recommended dietary allowances. Okay, someone is saying if mushrooms, as per you, have low protein, why is it called vegetarian meat? Actually, soya bean and mushrooms, actually they give you the taste of taste like like non-vegetarian to the vegetarian people. So it's mostly now it's taken a tide और बहुत ज़्यादा लोग like कर रहे हैं इसको, but they have their own benefits. Mushroom के भी, जैसे मैंने आपको बताया, they have antioxidants, तो उसके लिए भी, और उसके साथ साथ broccoli is also very good source of antioxidants. Bell peppers हो गए, जैसे शिमला मिर्च की बात की थी हमने, तो ये सारे बहुत अच्छे sources हैं. Carrots are a very good source, and we should not forget आंवला. तो आंवला तो richest source of vitamin C है, तो वो सारे जो हैं ये अभी तो बहुत ही फायदेमंद है, ये सारी चीजें अगर हम ले रहे हैं. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट नट्स आल्सो. तो नट्स आर वेरी गुड इन सेलेनियम एंड जिंक, तो नट्स का भी रोल बहुत आजकल जो है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे मैंने आपको बताया, वॉलनट्स हो गए, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारी चीजें. फ्लैक्स सीड आल्सो. Yes, flax seeds also, but flax seeds का थोड़ा तासीर गर्म होता है, तो ये हम थोड़ा बोलते हैं कि इनफैक्ट मेरी रिसर्च भी फ्लैक्स सीड्स पे ही थी, तो हमने देखा कि कई बार लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं. तो जब भी फ्लैक्स सीड्स लें, उसको पहले तो रोस्ट करके लें. कभी भी रॉ फ्लैक्स सीड्स नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उसकी बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपको नहीं मिल पाती हैं.
तो रोस्ट करके लें और वो बहुत जल्दी रैंसिड भी हो जाते हैं। तो ये इंश्योर कर लें कि 2 या 3 दिन के लिए आपको जितना चाहिए बस उतना ही उसको रोस्ट करके रखें, और एक्सेसिवली उसको रोस्ट नहीं करें, क्योंकि फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं, जो न्यूट्रिशन है उसका, वो फिर डिटोरिएट होने लगता है। तो उसको मॉडरेशन में लेते हैं और चेक करके लेते हैं कि आपको कोई एलर्जी है या इससे कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। And what about the people, those who are milk intolerant? हाँ, मिल्क इंटॉलरेंट है तो फिर उसके लिए जैसे हमने बात की, आलमंड मिल्क हो गया या कोकोनट मिल्क हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो एक बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, आप उससे ले सकते हैं, उनसे आप प्रोटीन अपना मीट कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग लैक्टोज इंटॉलरेंस और यू आर एलर्जिक टू मिल्क। Okay, what do you have to say about chia seeds? Chia seeds are also very good sources of nutrients, omega-3 fatty acids. In comparison to chia seeds, flax seeds are more rich in omega-3 fatty acids. But chia seeds का आजकल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि we see there is a upcoming market which is promoting chia seeds. तो ले सकते हैं chia seeds. It's not that I am against chia seeds, but they are very expensive. Is what I cannot recommend it to everyone on a day-to-day basis. So there is another seed that has been very famous. I'm just forgetting that name. Even that is very quinoa. कीनवा, यस, कीनवा इज वो एक्चुअली क्या है, आपको बताएं कि ये सारे हमारे जो ट्रेडिशनल ये सारी चीजें थी, सीरियल्स थे, और अभी जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल रेसिपीज को हमें बहुत अच्छे से, अभी मैं भी सुन रही थी, कोई मैम बता रहे थे कि रिवाइव करना है कदम ट्री के बारे में। तो ऐसे ही हमें इन ट्रेडिशनल रेसिपीज की अगर हम, और ये ग्रुप तो इतना ज्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव है, तो आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा ये सब चीजें, मतलब जो भी मैंने बताई उनको फॉलो करना, या उनके लिए थोड़ा सा मतलब उनको शेयर करना भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप लोग इतना वैसे ही इतना आई सीन सो मेनी वेराइटी ऑफ थिंग्स यू पीपल आर एंगेज इन। सो ये सारी जो रिवाइवल है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे ट्रेडिशनल जो एंसेस्टर्स हमारे ग्रो करते थे, और वही ये सब फिर से आ रहा है। फ्लैक्स सीड्स भी हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइम से हो रहा है, और अभी इसका इतना क्रेज है, इट्स कमिंग एज अ वेरी, इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, ये तो है ही, हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत सारे। और चिया सीड्स क्या थोड़े से इंटरनेशनल उनका वो है, तो इसलिए चिया सीड्स हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं, बट फ्लैक्स सीड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड पंपकिन सीड्स आई वुड आल्सो ऐड। हमारी मिलेट्स वगैरह जो होती हैं, हाउ अबाउट दैट? पार्डन? मिलेट्स, यस, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है मिलेट्स। अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, अभी तो सर्दियां आ ही रही हैं, तो है ना, मिलेट्स के लिए हमारा, और मिलेट्स उनके लिए भी अच्छी हैं जिनको कोई एलर्जी है, कोई वीट एलर्जी है, तो उनके लिए भी मिलेट्स आर अ वेरी गुड सोर्स। तो आप मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे कुटू हो गया या फिर रागी हो गई। तो रागी तो बहुत ही अच्छा है, कैल्शियम रिच है, आयरन रिच है, तो ये अगर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने डाइट्स में तो बहुत अच्छा है इसके। आजकल छोटे बच्चों को भी रागी पॉरिज देते हैं छोटे बच्चों को। हाँ, नहीं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मल्टीविटामिन रिच है, इसमें फाइबर होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम बच्चों के वैसी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आयरन रिच होती है, और फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, और ये इसको रेगुलर यूज में लेना चाहिए एज अ मल्टीग्रेन, मतलब आप अगर मल्टीग्रेन आटा बना रहे हैं। रागी इन एनी सीजन? रागी इन दिस टाइम इट इज समर, सो थोड़ा और रागी का थोड़ा टेस्ट बिटर होता है, तो इट नीड्स टू बी मिक्स्ड विद सम अदर फ्लावर। सो एंड थोड़ा सा हाँ गर्म तो होता है, बट ये है कि आप ले सकते हैं, बट नॉट ओवर डू विद दैट। तो उसके को किसी और ठंडा, जैसे हमारे हो गए कि बार्ले हो गया, which is jaw, तो वो jaw का आटा is having a ठंडी तासीर, it's cool, तो आप उसके साथ मिक्स करके you can have चना का जो चना का आटा है, that is also coolant, तो आप उसके साथ मिक्स करके you can have your multigrain flour at home. And somebody is saying the amla juice that is available in the market, yes. Can we take that? There is a lot of debate. I think that's all for the questions today. I'll answer this as amla agar freshly agar available hai to nothing like that, and amla is a rich powerhouse of nutrients, vitamin C है, fiber है, anti cholesterol उसमें abilities है, anti diabetic properties हैं,
तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे को इम्यूनिटी बूस्टिंग में। और ये जो हमारे पास जो अक्सर देखा है कि जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रेजर्वेटिव्स एडेड होते हैं, तो वो जो है हमारे को डायरेक्टली इतना हेल्प नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट फुल्ली हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग इन अ बिट, बट इफ यू कैन, क्योंकि इफ इट इज अवेलेबल लोकली तो हमें बेटर वी शुड गो फॉर फ्रेश प्रोड्यूस ऑफ आम। Or we can have amla chutneys, or we can have amla sauces. These are, I think, आपके recipes में भी मैंने देखा है. I am getting a last question. Yeah. Hear you.